Dear students, it is all focused on tips and tricks about chemistry. So you all have been studying hard and preparing hard for your NEET exam, which is scheduled to be held somewhere in August. But yes, the dates are not yet confirmed, but still, we thought of trying to help you in your preparation for the NEET exam. So students, you all must be knowing that as compared to biology and physics, chemistry is considered to be the most scoring section. If prepared thoroughly, chemistry can help students to secure a meritorious position in this exam. Out of total 720 marks, NEET chemistry comprises of 180 marks, that is 45 questions. Therefore, it is essential for students to prepare well for the chemistry section. Nearly 36% of weightage in NEET chemistry section is related to physical and inorganic chemistry, while 28% is allotted to organic chemistry syllabus as per the previous trends. In some instances, equal marks distribution is seen between all three sections. In order to enhance your chemistry preparation, today we have with us Dr. Vipin Agarwal. With an experience of more than 27 years, Vipin Prakash Agarwal is the biggest authority in chemistry for medical entrance exams in India. He has been associated with the leading brands of entrance coaching in India at the highest levels. A large number of successful candidates over the years with coveted ranks, including All India Rank 1 in medical entrance, are the testimonials of the depth of his knowledge in chemistry, as well as the ease and flair with which he imparts the knowledge to his students. He is unique in India as a teacher who has equal expertise in all the three parts of chemistry. He is loved by his students and he is readily available and easily approachable. His methodical approach to the curriculum creates a highly competitive platform for the students, enabling them to succeed. So once again, I welcome all the students who have joined us or who will be watching this video over the period of time. And we really hope that this will help you in your preparation of NEET exam and particularly for the subject of chemistry. So I would like to request Dr. Pawan Kapoor to kindly guide the students and introduce our speaker as well. So please. Good evening, dear students, and welcome all of you for this session. Continuing with our every Sunday session as requested by all of you, we have now brought in chemistry this time. In the previous session on biology, you have learnt about how to prepare for biology. You know that the NCERT textbook is your Bible, and it is Bible for all subjects, including biology. You learned that there is a need to address both factual and conceptual questions. And for factual questions, you have to read repeatedly. And for conceptual questions, you are supposed to just understand the concept and be able to do a lot of practice on applying that concept. Similarly, we have now with us Mr. Vipin, who is a very renowned teacher in chemistry, as already introduced to you by Dr. Dinesh. You know, he has been a very, very dedicated and committed teacher. Several of our students have gone through his hand and who have performed exceedingly well. And you know, he has that magic in his teaching that he can convert even people with very little knowledge. He can make them at least above average. So you can understand how great a personality is by the biodata that has been just read out to you by Dr. Dinesh. So having him amongst us is a big privilege for us. तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने अपना बहुमूल्य कीमत निकालकर आप सब बच्चों के लिए इन्होंने एक स्पेशल सेशन तैयार किया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टडिंग इन केमिस्ट्री, व्हाट आर द टिप्स एंड व्हाट आर द ट्रिक्स. So I request all of you to be focused, to listen to him, and if you have any questions at the end of the session, we will start with the question answers. You can please place your questions in the chat box. Also, I request you all to place your email IDs and telephone numbers so that when we have to contact you or you want to contact us, all that can be easily available with all of you. Okay, so all the best. Enjoy this session and address your concerns and your issues. तो जो भी आपको मुश्किलात आती है, जो भी आपको मुश्किलें लगती हैं, वो सब इनसे पूछिए और हम इसी तरीके के सेशन हर संडे को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है कि हर सेशन में हम लोग
सारी चीजें कवर नहीं कर सकते. We cannot cover everything in a single session. So we'll keep on organizing these sessions every Sunday between 7 to 8 p.m. So this can be a part of your routine and a part of your preparation tips. So all the best to all of you, and thank you, Mr. Vipin, for joining us and helping us to help the students to perform better in the coming NEET examination and secure good ranks. So over to you, Mr. Vipin. Good evening to all. Today we study how to study the chemistry. How to study the chemistry? Basically, chemistry consists of three parts. Three parts, that is physical, organic, and inorganic. Today time, the weightage of each part is same. Total 45 questions are present in the exam, and from each section 15 questions, roughly 15 questions are asked from the physical, organic as well as inorganic. So all parts are important. All parts are important. In previous time, inorganic is not so important, but today time, inorganic is also the important because the weightage are same. Physical, organic, and inorganic. But the way to study study all the portions are different. So we take one by one. For physical, how you study; for organic, how you study; and for inorganic, how you study. So note down each point for each section. So we take one by one. For physical, how you study; for organic, and for inorganic. And which chapters are most important? Which chapters are most important? It is also told by me. So firstly, we take physical chemistry. How we study the physical chemistry? For physical chemistry, actually, this is the numerical portion. This is the numerical portion. And in physical chemistry, you learn all the formulas of each chapter. And on each formula, you must do 2 to 3 questions only. 2 to 3 questions only. Not so much, 2 to 3 questions only. After that, you practice 50 to 100 questions. For example, if we take first chapter, that is some basic concept of chemistry. So in this chapter, total 5 to 6 formulas are present. Only 5 to 6 formulas are present. So on each formula, you do 2 to 3 questions. And then you practice 50 to 100 questions. That is sufficient. For example, mole concept. In some basic concept, mole concept is present. So the formula of moles are N is equal to W upon M. N is equal to, it is present in 3 forms: in terms of weight, in terms of number of entities, upon Avogadro's number, and only for gas, number of moles, volume in liter at NTP, and the volume of 1 mole is 22.4 liter. Then this formula. Only 3 formulas are present, and all questions are based on these formulas only. So you do 2 to 3 questions on each formula. 2 to 3 questions on each formula. Then you will be perfect. And then you practice 50 to 100 questions only. Not so much. You not done 100 above 100 questions. 50 to 100 questions are sufficient. And when you revise the chapter, then you revise the same thing and same question. Not the different question. You revise the same thing and same question.
है ना, then you will be perfect on each chapter. In physical chemistry, 5 chapters are most important. Note down these chapters. 5 chapters are most important, and first chapter is some basic concept. Second chapter is around 9 to 10 questions are asked from the 5 chapters. First is the some basic concept. Second is the chemical bonding. Here we take in physical. Actually, this chapter is considered in inorganic also. But here we take in physical chemistry. Chemical bonding, most important chapter. It is used in inorganic chemistry as well as organic chemistry also. This is the basic chapter, and 2 to 3 questions are asked from the single chapter, that is the chemical bonding. This is the most important chapter. Third one is equilibrium. Fourth one is solution. Solution for 11th part, 12th part. This is from 12, this is from 11, this is from 11, and this is from 11. And fifth chapter is electrochemistry. Electrochemistry. This is also from 12. So these 5 chapters are most important. Actually, you do all the chapters, but these 5 chapters are most important. Done carefully for these 5 chapters, and practice for these 5 chapters. Some basic concepts: chemical bonding, equilibrium, solution, and electrochemistry. So you understand how we study the physical chemistry. पहले आपको क्या करना, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बता रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े से मतलब जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला को पूरा एक उस पे अंडरलाइन करके पूरा एक पेज पे लिख लीजिए. Only one page is required for all the formulas. For all the formulas, only one page is required for each chapter. So you create 5 pages for these 5 chapters only. And now you've done 2 to 3 questions on each formula. See my videos on YouTube. Only type Vipin Agrawal chemistry, then see my videos on YouTube. Then you understand how we deal the one chapter. You see only one chapter, that is some basic concept. It is free for all at YouTube. Then you see only one chapter, then you understand how we study all the chapters. How we study all the chapters, then फॉर्मूले को आपने यूज कर लिया 5 पेजेस पे, इन 5 चैप्टर्स के लिए आ गए, एंड डू 2 to 3 क्वेश्चन फॉर ईच फॉर्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए. यूज करना आ गया तो देन इट इज सफिशिएंट, एंड देन यू कैन डन ऑल द क्वेश्चन. So in physical chemistry, this is the way to teach, way to learn in physical chemistry. Note down all the formula and then do 2 to 3 questions on each formula, and then done for the practice 50 to 100 questions for any book which is present in the market or which is present in the study material. हमारे स्टडी मटेरियल में भी है, सब में है, तो वो किसी से भी आप कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी जरूर पढ़नी. एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है. एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगानी है और कुछ नहीं. उसी से फॉर्मूले भी नोट करने हैं, रीडिंग लगानी है. रीडिंग लगा के उसके क्वेश्चंस करिए. फिजिकल केमिस्ट्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, तो बहुत आसान होती है. फिजिकल केमिस्ट्री में कभी गलती नहीं होती, क्वेश्चन गलत नहीं होता. हो सकता है कि आपका इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में गलत हो जाए, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन होते हैं और आपने सही से करा हुआ है, देन यू
score 100% marks. 15 क्वेश्चन है, 15 into 4 that is 60 marks. 60 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, इसमें कोई गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते, केवल फॉर्मूले का यूज करना होता है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? देन we move to the organic chemistry. So note down these chapter also. Note down these chapter also. These are the most important chapter. Now we move to the organic chemistry. Organic chemistry का different way. Organic chemistry इस तरीके से नहीं होती. Here one chapter is most important. That is the general organic chemistry, GOC. GOC. This is the most important chapter. You read this chapter from the NCERT, General Organic Chemistry. This is the chapter of 11th part. This is the chapter of 11th part. This is the most important chapter, and actually this is the backbone of the organic chemistry. All concepts of this chapter are used in whole organic chemistry, either in 11th or in 12th. In whole organic chemistry, all concepts of this chapter are used in whole organic chemistry. So this chapter is most important, and actually 3 to 4 questions are asked in each year in the NEET exam. 3 to 4 questions. Weightage of this chapter is the 3 to 4 questions. So GOC is the most important, and for GOC, actually we command on electronic effects, and these electronic effects are सबसे important यही चीज है. This is the electronic effects. And these electronic effects are inductive effects. Basically, effect का application main है. The application of these effects are most important. इसको apply कैसे करना है, इसको use कैसे करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए. Second is electromeric effect. Third is resonating effect. And fourth is hyperconjugation. Whole chapter is based on these effects only. These effects are most important. Other things are not so important, like estimation of elements, detection of elements. It is not so important. But these effects are most important, and the application of these effects, not only inductive effect, electromeric, it's application of inductive effect. जैसे कि, for example, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें फाइंड करनी है. एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड करनी है. हमने एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, RC+OH. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एसिड. व्हाई इट इज एसिडिक? इफ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एसिडिक, actually the lone pair of electron of oxygen participate in resonance, and then this electron move towards the hydrogen, then H+ ion releases, and it is the resonating form, carboxylate ion, and here double bond O plus H+ ion. So it releases H+ ion. Here we understand how inductive effect is involved in the acidity of carboxylic acid. Actually, this group, either it has minus I effect or plus I effect. Either it has minus I effect or plus I effect. Such group which increases the resonance, which attracts the lone pair of electrons, then
H plus ion releases easily. Then H plus ion releases easily. So it attacks the electron. Then H plus ion releases easily. Actually, minus I effect is the electron attracting group. Electron attracting groups, more is the minus I effect, higher is the acidity. And in the same way, if we use the plus I effect, then plus I effect is the electron repelling group, and it repels the electron. But resonance is always overcome on the inductive effect. तो ये इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा इस साइड में, लेकिन उसके आने की पावर क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. एंड एसिडिटी बिकम्स लेस. एसिडिटी बिकम्स लेस. So minus I effect group increases the acidity and plus I effect group decreases the acidity. So this is the application of inductive effect. ये तो मैंने एक एप्लीकेशन बता दिया. इसी तरीके से आपको इसके एप्लीकेशन पता होने चाहिए. एसिडिटी, हम पूरी एसिडिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, पूरी इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस है. इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिसाइड होती है. आपको माइनस आई इफेक्ट ग्रुप देखना है. मोर इज द हायर इज द माइनस आई इफेक्ट, हायर इज द माइनस आई इफेक्ट, मोर इज द एसिडिटी, एंड higher is the plus I effect, lesser is the acidity. So you can decide the order of the acidity of different carboxylic acid. So this is one application. इसी तरीके से और जगह अप्लाई करना होना चाहिए. Electromeric effect, it is not so important effect, but actually this effect is used for the addition of the compound in alkenes. This effect is most important. All outpoint para-directing, meta-directing, resonance is most important, and then hyperconjugation is also important. So these four effects are most important. Note down these effects. इन effects को आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, because these effects are used in whole organic chemistry, either in 11th or in 12th. whole organic chemistry. Actually जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बेसिकली अगर देखा जाए तो इन इफेक्ट्स के ही आपसे 3 से 4 आ जाते हैं. ओवरऑल हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर से होता है. तो 7 to 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं. 15 क्वेश्चन में, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन. सम पार्ट इज आइसोमेरिज्म, बट मेनली क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ओनली. तो घुमा फिरा के उसी पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर बेस होते हैं क्वेश्चन. So this chapter is most important, GOC. Now, तो ये चैप्टर आपको 11th का करना ही करना है. दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन है. यहाँ पर भी मैं आपको केवल 4 चैप्टर्स लिखूंगा. यहाँ पर 4 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप ये समझिए ना, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं. 15 में से 10 की गारंटी है कि इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे. 10 इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे. फिर मैं बताऊंगा एक एक क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं. तुमने चैप्टर्स के नाम सुने होंगे. यू हर्ड द नेम ऑफ दिस चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक क्वेश्चन. पॉलीमर एक क्वेश्चन. बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन. बायोमोलिक्यूल ऑलरेडी डन इन द बायो आल्सो. बायोमोलिक्यूल आप लोग बायो में भी कर लेते हैं, तो वहां से एक क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन तो आपके ये बिल्कुल है ही है कि ये 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं. और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जो 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 10 क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो केवल 4 चैप्टर से, केवल 4 चैप्टर से है. फर्स्ट चैप्टर इज जीओसी. सेकेंड चैप्टर is alcohol, phenol and ether. This is the part of 12th. 11th में only 2 chapters are present, in which GOC is the most important, hydrocarbon is not so important. GOC is the most important, phenol and ether. Third chapter is aldehyde ketone. Aldehyde ketone से भी 3 to 4 question. Aldehyde ketone and carboxylic acid. This is the chapter of 12. It is also the chapter of 12, and 4th chapter is amines. This is also the chapter of 12. एक इसमें वैसे तो 12th की ऑर्गेनिक के ही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. इस पे भी फोकस कर सकते हो. एक्चुअल में ना इसमें
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म SN1 SN2, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है SN1 एंड SN2, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2, इसकी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये केवल 4 चैप्टर आपको करने हैं, 10 क्वेश्चन की गारंटी होती है। 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर्स में से मिलने, क्योंकि ये मेरा पूरा देखा हुआ है, पिछले 20 सालों का देखा हुआ है सारा क्राइटेरिया, तो इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आने को कुछ भी आ सकता है, कोई ये नहीं है कि क्या कहते हैं मतलब मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ कि आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन देखा यह गया है कि मोस्टली क्वेश्चन अराउंड 10 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आपको मिल जाते हैं। राइट नाउ वी मूव टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अच्छा एक चीज और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक चीज और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। बिना आपने जीओसी पढ़ी नहीं और ये करना शुरू कर दिया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। आपको सबसे पहला चैप्टर ये जीओसी करना ही पड़ेगा, इसको आपकी मजबूरी है, ये आपका कंपल्शन है कि फर्स्टली यू डू द जीओसी एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तो ये हो गया रिएक्शंस आपने वैसी लर्न कर ली, वो उसका मजा नहीं, थोड़ा सा चेंज करके आ गया फिर आप कर ही नहीं पाओ। तो इसलिए फर्स्टली यू डू द जीओसी एंड देन यू टच अनदर चैप्टर। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में है। बिफोर स्टार्टिंग एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर मस्ट बी डन बिकॉज these concepts are used in this chapter, and in amines the concept of aldehyde and ketone are used in the amines. So always do in sequence, इसमें आप ऐसा नहीं बीच से उठा लो, पिक नहीं कर सकते। फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी फिजिकल में यू कैन पिक एनी चैप्टर, यू कैन पिक एनी चैप्टर, वहां कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सा भी चैप्टर उठाइए और उससे एंजॉय करिए, उसके वो लिखिए, सारे फॉर्मूले लिखिए, उस पर 2-2 क्वेश्चन करिए और 50 to 100 क्वेश्चन चैप्टर में करिए, फिनिश। और जब भी रिवाइज करें उसे ही बार बार रिवाइज करिए, उसे ही बार बार रिवाइज करिए। राइट नाउ वी मूव टू द last portion of the chemistry, that is the inorganic chemistry. Inorganic chemistry, it is totally different. It is the theoretical based portion, no numerical, only theory, no linking is present. But before starting inorganic chemistry, you must do 2 chapters, basic chapters. And these 2 chapters are the part of physical. Actually, these chapters are periodic table. Before starting the inorganic, several questions are asked. I already told to you, from chemical bonding, 3 to 4 questions are asked in the NEET exam. These 2 chapters are basic for the inorganic, and the concept of these 2 chapters are used in inorganic chemistry. In inorganic chemistry, and for inorganic chemistry, note down this point, for inorganic chemistry, you read only NCERT. You read only NCERT, no other notes, no requirement, only NCERT. You read only NCERT and done the questions. And done the question 100, 200, 300. For each chapter, you done the question only. Here, only 4 chapters are important. Only 4 chapters are important. And in inorganic chemistry, generally in these 4 chapters, almost 15 questions can be asked. Except 2 to 3 questions, almost 15 questions. Almost 15 questions can be asked in 4 chapters. And for inorganic chemistry, you read NCERT only, not the other book. Not the other book, read only NCERT.
So firstly, you done these two chapters, and then 4 chapters. Actually, this is not the portion of inorganic. It is considered in inorganic as well as in physical. Actually, these chapters are 3rd and 4th chapter of the 11th part. Now, third is the P block. Read NCERT only. 4th is D and S block. Fifth is coordination chemistry. Sorry, totally these 5 chapters are present. Coordination chemistry. And coordination chemistry is the most important chapter. Every year, 3 to 4 questions are present in the question paper of NEET exam. Every year, 3 to 4 questions from one chapter only. Actually, the weightage is so high. Total 30 chapters are present in chemistry and 45 questions are present in the examination paper. So the weightage of one chapter is 1.5 question. But from some chapters, 3 to 4 questions are asked. It means the weightage becomes double or triple. So coordination chemistry से 3 to 4 question आपको every year मिलने हैं. So this is most important. और एक चैप्टर आप और लिख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल. इससे एक क्वेश्चन आने ही आना है, जनरल प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट. एक्चुअली मैंने 12th की ऑर्गेनिक ही इनऑर्गेनिक ही इंपॉर्टेंट है, 11th की इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट नहीं है. हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है. पी ब्लॉक मैंने यहाँ पर सब ले लिया फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप. Extraction of elements. So this is all about inorganic chemistry. तो inorganic chemistry में केवल एक ही बात है, आपको केवल NCERT पढ़नी है और कुछ नहीं करना. Only NCERT and then questions from our material or from any book. You do maximum question and read NCERT only, and this chapter is most important. So इस तरीके से आपकी ये पूरी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो गई. हर एक का वे आपको पढ़ने का डिफरेंट था. तो ये नहीं कि एक ही तरीके से आप सब पढ़ रहे हैं. फिजिकल में क्वेश्चंस लगाने हैं और एवरी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस करने हैं. प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन कर लीजिए, एनफ है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सीक्वेंसिंग वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपको जीओसी पढ़नी है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे. ये नहीं कि आप एकदम जंप करके दूसरे चैप्टर पे चले गए, कुछ नहीं होने वाला है. तो वहाँ सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका यूज है इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में. ये बेसिकली 11th पार्ट के चैप्टर है और ये पूरी 12th की इनऑर्गेनिक है. 11th की इनऑर्गेनिक नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको करना है. मैं नॉट सो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ तो ये नहीं, अगर आपको रैंक 1 लेके आनी तो आपको 100% सारी चीजें करनी. फिर आपको कोई भी छोड़ ही नहीं सकते ना, वहां तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना. तो रैंक 1 लेके आनी है तो आपको पूरा का पूरा करना है. लेकिन ये मैंने वो तरीका बताया जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और यू कैन गेट ए सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. So from these part you can get a seat in government medical college. So you can ask any question from this part, any problem, you can ask any question. In chat box you write. Yes, sir. We have few questions from the students, so Yeah. I will just read them to you. Mr. Arup Saha is asking, sir, I'm very weak in organic chemistry, the GOC part. What Okay. to make it strong? How can I make my GOC part of organic chemistry strong? Okay. So I already told to you, focus on electronic effects. Focus on electronic effect and the application of the electronic effect.
So read NCERT, and actually this is the student of our student or the outsider student? Sir, he has not mentioned it, but I hope he is somewhere from outside who is watching your video. Okay. तो फिर तो आपका यही electronic effects, you concentrate on the electronic effect, and before starting the electronic effect you done the isomerism also, then you done very well in electronic effect. After isomerism you done the electronic effect, and when you done the electronic effect, all the electronic effect and the application of these electronic effects, then you have the confidence in organic chemistry. So GOC part में, अब जैसे GOC part है, GOC part में इसने कहा मुझे वीकनेस आ रही, अब अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको कोई हेल्प तो लेनी पड़ेगी, फिर आपको हेल्प लीजिए सर इनके साथ। तो फिर यही हो सकता है ना कि फिर तो इन्हें कोई टीचर ही इन्हें बताए समझाए, फिर GOC पार्ट को तभी ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आपको कोई मिल रहे हैं तो इस तरीके से करके इनके सेशन भी लगाए जा सकते हैं, या फिर कहीं और से करें जहां भी होंगे, जिस कोचिंग में भी होंगे। Okay, so Mr. Arup, I hope sir has explained you कि आपको अपने concepts पहले आपको अपने ठीक करने हैं। उसके लिए आप किसी भी अच्छे टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें दे दीजिए, एंड वी विल फॉरवर्ड इट टू सर एंड यू कैन ज्वाइन हिज क्लासेस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था। सर केमिस्ट्री को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं सर? कोई इसके लिए कोई ट्रिक है कि इसको लंबे टाइम तक याद रखने की? देखिए, लंबे टाइम तक रिवीजन तो जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ मिथ भी है ना कि इसको अगर आपने दोबारा रिवाइज नहीं करा तो भूल ही जाएगी। इसमें लंबे टाइम तक याद करने का एक तरीका है मेरे पास, जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए है। अब इसको आप सारे बच्चे नोट कर लीजिए, है ना। ये तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर तुम करोगे तो सारा याद रहेगा आपको। फिजिकल के लिए फॉर्मूले के मैंने बताया, एक पेज में फॉर्मूले आ जाते हैं, केवल फॉर्मूले लिख लीजिए। ऐसे आपके सपोजिंग दैट मैं कहता हूँ सब सारे चैप्टर कर रहे हो, 8, 5, 13, 5 11th में है और 8 11th में है, 13 चैप्टर के 13 पेजेज आपके पास आ जाएंगे। रिवाइज दीज फॉर्मूला जो, और ये 13 पेजेज आपके हमेशा रहने चाहिए टिल एग्जाम। और इनके क्वेश्चंस को आप करते जाइए कि हाँ भाई मुझे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करके देख लिया, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना है, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन कीप दीज 13 पेजेज विद यू ऑलवेज टिल एग्जाम। पहली चीज, ये फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो गई। दूसरी चीज क्या है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत तरीका मैं बताता हूँ जो मैंने करा हुआ है और सक्सेसफुल तरीका है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जैसे सपोजिंग दैट हेलो एल्केन्स ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया हेलो एल्केन्स। अब इसमें क्या है कि जो भी आपके नोट्स हैं, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन के केवल नाम लिखने हैं, रिएक्शन नहीं लिखनी। प्रिपरेशन में जैसे मैं लिख दिया फ्रॉम अल्कोहल, जो PCl5 और इन सब से बनाते हैं। सेकंड लिख दिया फ्रॉम एल्केन, फिर लिख दिया हंस-टेकर रिएक्शन जो एल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी आप और भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसी प्रॉपर्टीज के केवल नाम लिखने हैं। फर्स्ट इज SN1 SN2, सेकंड इज विलियमसन सिंथेसिस। मान लो ऐसी 10 हैं और इधर भी 6 है, मान लीजिए, एक पेपर पे आ जाएंगे, सही है। आपने इस तरीके के केवल 5 पेपर बना लिए। जो चैप्टर मैंने लिखे 11th में 4 ही चैप्टर है, रिएक्शन वाले अमीज तक हैं, केवल 4 ही चैप्टर है। और उधर GOC में तो कोई पेपर बनेगा नहीं, हाइड्रोकार्बन में एक पेपर, 5 पेपर बन गए। अब देखिए तरीका सुनिएगा, आपने सिर्फ ये पेपर उठाया और इस पेपर की रिएक्शंस को एक रफ कागज पे लिख लिया कि अल्कोहल से याद आ रहा है, तुम्हें नहीं भी याद आ रहा है, गलत सलत जो भी याद आ रहा है,
वो आपने एक रफ पेपर पे लिख के देख लिया, एल्केन का, हंसटेकर का, ये सब लिख के देख लिया और तुरंत इसको चेक करा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी। कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको मिस्टेक्स देखनी है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, कोई बात नहीं। मैकेनिज्म्स का बना लिया एक पेपर कि मैकेनिज्म्स मैंने ये लिख के देखी, यहाँ पर गलती कर दी, डन। मान लो सपोजिंग दैट आज डेट है 27 जून, आपने डेट डाल दी और इसके एक हफ्ते बाद की डेट डाली, 27 के बाद 7, मान लो 3 जुलाई आ गई, 3 जुलाई आ गई, 3 जुलाई की डेट डाली या 4 जुलाई की डेट डाल दी, छोड़ दिया इस पन्ने को। ऐसे ही अगले दिन 27 के बाद 28 को दूसरा पेपर उठाया, उसे पूरा देखा, उसे पूरा, बस गलती को कुछ रटना नहीं है और केवल गलती निकाल के छोड़ देना है कि हाँ ये गलती कर दी, अब अगली बार से देखेंगे। उस पर एक दिन बाद की डेट डाल दी, फिर अगला पेपर उठाया, उस पर एक हफ्ते बाद की डेट डाल दी। जब आप ये एक हफ्ते का सीक्वेंस कर चुके होंगे तो आपकी ये डेटें शुरू हो जाए। जैसे ये डेटें शुरू होंगी आपने आपकी 50% गलतियां खत्म। आपके पास अब पूरे टिल एग्जाम केवल 5 पेपर रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा, ना कॉपी रहेगी ना कुछ रहेगा, केवल 5 पेपर रहेंगे। और फिर आपने ये 4, 5, 6, 7 फिर से वही रिपीटिशन शुरू हो गया। अब की बार आपने क्या करा, इसको इंक्रीज कर दिया, इसको कर दिया 1 वीक की जगह 2 वीक का टाइम, यानी 4 के बाद आपने 2 वीक का मतलब 14 यानी 18 तारीख की डेट डाली। फिर उसमें 2 वीक का टाइम, 2 वीक का टाइम, ऐसी 6 पेपर, ये तीसरी बार रिवीजन। अब इसकी आपकी 50% गलती है खत्म हो गई, थोड़ी बहुत गलती है और हो रही है, फिर से आपने देख के छोड़ दिया कि भाई ये गलती, और अपने आप रिकॉल हो जाएगा, अपने आप ये ऑटोमेटिक रिकॉल होगा। तीसरी बार जब आप करने बैठेंगे ना इसका रिवीजन, ऑलमोस्ट 99% आपका सही होगा। चौथी बार करेंगे 100% हो जाएगा, काम खत्म। अब ये 5 पेपर आपको रिवाइज भी करना है तो ये 5 पेपर उठाए, ये रिएक्शन होती है। आप लोग क्या करते हैं ना, आपकी गड़बड़ कहाँ पर है, आपकी गड़बड़ कहाँ पर है, आप कॉपी से पढ़ना शुरू करो। अब कॉपी में तो लिखा हुआ है ना वो रिएक्शन ऑलरेडी, तो आपको एकदम याद आ जाएगी। याद नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, वो आपको एक्चुअल में सीक्वेंस ही याद नहीं रहता। सीक्वेंस देखने के लिए कॉपी उठाते हैं, कॉपी उठाई नहीं और वो गड़बड़ हुआ नहीं, वो फिर एक्चुअल में आपको याद नहीं होता, वो भूल ही जाना है, वो भूल ही जाना है। इसमें आपके भूलने का चांस पूरा जीरो हो गया, जीरो हो गया। इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें केवल नाम लिखे हैं कि इस इससे बना सकते हैं। भाई ये सीक्वेंस आपको मिल गया, तीसरी बार जब उठाओगे तो बिल्कुल सही होगा। फिर ये 15 दिन का गैप हमेशा के लिए बना दो, ज्यादा नहीं, 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% सही हो गया। क्वेश्चन करना चाहो, अब क्या करना है आपके रिवीजन में ये 5 चैप्टर पता है कितनी देर में होंगे, 30 मिनट। जब आप एग्जाम में रिवाइज करेंगे ना, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट में खत्म। 13 पेजेज में फिजिकल खत्म, 13 पेजेज ही तो है आपके पास, पूरी फिजिकल खत्म, सारी चीज आपको अपने आप रिकॉल आती जाएगी। ऐसे 2-3 बार कर लिया, काम खत्म। गलती ही नहीं हो सकती, याद तो रहेगा ही रहेगा, 100% याद है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सर आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे हम बोलते हैं अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो बिल्कुल बिल्कुल हिस्ट्री सीखने के लिए अपनी गलतियों से सीखें। टेक्स्ट बुक से मत पढ़िए, आप लिखिए, जो आपकी गलती है उसको आप रिवीजन के अंदर पढ़िए। हाँ, वही तरीका जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल सेम वर्ड पे मैंने ये तरीका उसी वर्ड पे बनाऊंगा कि आपके अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लिख के होगा, और इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं है, 1 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिख लोगे, तीसरी बार तो अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए मानसी से। सर आई हैव सीन योर यूट्यूब वीडियोस, सच अमेजिंग वीडियो सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगसु रे। सर रिडॉक्स रिएक्शंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं? रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली बेसिक चैप्टर है जिसकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ती है। एक्चुअल में ना हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है उसी के साथ हम लोग रिडॉक्स भी कराते हैं, दोनों चीजें एक साथ कराते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक चैप्टर है, उसकी नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपकी। एज इट इज क्वेश्चन रिडॉक्स से नहीं आएंगे, लेकिन उसका यूज करके सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आएंगे। एन फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रिडॉक्स तो आपको करना ही करना।
थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिस्टर अनीश पूछ रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज आस्किंग फॉर अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड कि डॉक्टर विपिन ने बताया है कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और कुछ चैप्टर्स जो हैं बताए हैं आप पार्ट से। सो सर सिर्फ यही चैप्टर्स करने से विल इट बी इनफ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री? देखिए गुड मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए, अंडर 100 रैंक चाहिए, मैं 1 की बात नहीं करता, अंडर 100 चाहिए, तो आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ये चैप्टर तो इसलिए बताए गए हैं कि ये तो आपको बहुत विशेष रूप से बहुत अच्छे से करना है। मतलब इसको जैसे बाकी चैप्टर को आप 2 बार रिवाइज कर रहे हैं तो इसे 4 बार रिवाइज करें, तो ये चैप्टर्स तो आपको करनी है। लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए, आपके अंदर इच्छा है कि आप मुझे अंडर 100 रैंक चाहिए, सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ सकते। वहाँ एक भी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आ गया और गलत हुआ तो 5 नंबर गए आपको, जो -1 हो गया और 5 नंबर गए, 5 नंबर पे 1000 रैंक नीचे आ जाएगी। 1000 रैंक होती है 5 नंबर, तो आपको फिर सारा ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो चैप्टर इसलिए बताए हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से करिए। मतलब इन चैप्टर्स के साथ तो आपको कोई छोड़ना ही नहीं है, कोई भी चीज छोड़नी औरों के साथ भी नहीं है। लेकिन बहुत से ये होते हैं ना कि हाँ बस मुझे सिलेक्शन से मतलब है, तो सिलेक्शन के लिए काफी हो जाते हैं, सिलेक्शन के लिए काफी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत और पढ़ोगे तो काफी हो जाएगा। थैंक यू। लेकिन रैंक चाहिए तो फिर तो आपको चाहिए, फिर तो करना ही है सारे। ओके सर, अगर आपका स्कोर गोल है कि आपको टॉप रैंक लेना है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट लीव एनीथिंग, बट यस जो सर ने बताया है दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर क्वालिफिकेशन और फॉर यू सी टू गेट गुड मार्क्स, बट टू गेट गुड रैंक यू शुड क्लियर ऑल द टॉपिक्स। एंड सर अगेन इसी के अगेंस्ट क्वेश्चन है कि सर इन टॉपिक्स जो आपने बताए हैं इन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 45? आउट ऑफ 45 अराउंड 35 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, जो केवल मैंने जो चैप्टर बताया 35 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो सर ने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि जो आज हमने डिस्कस किया है, जो चैप्टर सर ने बताए हैं, so it is for all students that you can expect 35 out of 45 total questions of chemistry from these chapters that have been told by sir. Again sir ने एक और statement दिया था कि जरूरी नहीं है 35 का 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये चीजें जो है ये कंफर्म नहीं होती। सर नेहा का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स, आपने चैप्टर नहीं बताया, बट इज इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट और नॉट? केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में देखिए ना, टोटल है 30 चैप्टर, टोटल 30 चैप्टर्स आर प्रेजेंट एंड वी टोल्ड यू ओनली 15 चैप्टर, 15 चैप्टर्स आर लेफ्ट। In my opinion, all chapters are important, but most important chapters are 50. Most important chapters are 50. All chapters are important. Total 30 chapters are present, and we told you that only 15 chapters. Just half of the chemistry. Just half of the chemistry. But these chapters are most important, and all chapters are important. All chapters are important. Question can be asked from chemical kinetics also. कहीं से भी आ सकता है. So see, a good teacher will never tell you to leave any portion of your syllabus, but sir ने बता दिया है कि out of 50% of the syllabus you can expect almost 35 questions. So yes. Sir Kavya Shri का question है कि sir concentrating on the previous year question papers is enough for practice or not? Not. Only previous year question are also important, but this is not enough. This is not enough. Around 10 to 15% questions can be asked from the previous year. 10 to 15%. But this is not enough. Okay, so people are also sending their contact details and they want to know how they can contact you for classes or guidance. So we will forward all the contact details mentioned in the comment section to sir, or you can like contact them through us, or you can contact directly also sir on his YouTube channel. So sir has told that his videos are popular, like his videos are considered to be the Bible for preparation of chemistry. Sir, next you can send. Yes.
So you can send the contact details in the comments also. We will forward it to sir also. Okay, so that is not also an issue. Sir, one question from Arthi Manoj. Sir, how do we study and remember all inorganic chemistry topics like orders of basicity of compounds, their reducing powers, etc.? So उनको कैसे याद रखें? उसके लिए मैंने यही बताया, जैसे लाइक ऑर्गेनिक वी प्रिपेयर ए पेज, सो इनऑर्गेनिक you also make the page, order of basicity, order of reducing power, order of oxidizing power, all and all written on one page, and then you इस पे डेट्स डालिए और उसके बाद उसे लर्न करिए। तो इसके लिए भी पेज बना लीजिए लाइक ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बताया। So जैसे सर ने बताया, रिवीजन इज द की टू योर प्रिपरेशन। उसको आप एक हफ्ते में रिवाइज करते रहिए और आपको वो याद रह जाएगा। सर जानवी द्विवेदी पूछ रही हैं कि सर 1 महीना है जैसे अभी अप्रोक्सीमेट नीट एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सारी केमिस्ट्री को हम 1 महीने के अंदर सर पढ़ लें? अब इट डिपेंड्स ऑन यू। वैसे मैंने आपको 15 चैप्टर्स जो बताए उनको तो कर ही लीजिए, एटलीस्ट कर ही लीजिए। और वैसे भी होल द ईयर इन्होंने करा ही होगा, केमिस्ट्री करी होगी, तो इन 15 चैप्टर्स को तो करना बहुत जरूरी है। तो आप कितनी मेहनत कर सकती हैं ये आपके ऊपर है कि कैसे कवर कर लेंगी, लेकिन 1 महीने में पूरी प्रिपरेशन नहीं होती। और मैं आई थिंक सो कि पहले से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जब आपकी पहले से चल रही है तो 1 महीने में आप रिवाइज तो कर ही सकते हैं, और उन 15 चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। थैंक यू सर। सर प्रज्ञा भूयान का क्वेश्चन है, सर जैसे आपने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट इनफ फॉर प्रैक्टिस, सर कोई ऐसी बुक्स जो आप सजेस्ट करते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री? वैसे तो अपना जो स्टडी मटेरियल है, शायद हम लोगों के पास होगा स्टडी मटेरियल, तो वही एनफ होता है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं बताई जा सकती। बुक से अब आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। तो ओपी टंडन की है, आरसी मुखर्जी है फिजिकल के लिए, तो सेवरल बुक्स हैं, लेकिन 100% कोई भी सही नहीं। और 70% क्वेश्चन आर सेम इन ईच बुक। एक्चुअल में कॉपी पेस्ट होते हैं, सब कॉपी पेस्ट है। 70 to 80% क्वेश्चन आर सेम इन ईच बुक। तो कोई सी बुक उठा लो, कोई सी बुक ले लो, तो उससे आप कर सकते हैं। So students, you can refer any book available. सर ने बताया जी। एक चीज और है, इसके लिए आपके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमारे नीट प्रेप की है, नीट प्रेप पे हम लोग करते हैं, तो नीट प्रेप की कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग भी शायद रन करें एक टेस्ट सीरीज, तो उस टेस्ट सीरीज को कर लीजिए। कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, और लेटेस्ट क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस, और फिर नंबर भी आते रहेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप अपने आप को भी जज कर पाएंगे कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो एनी बुक यू कैन रेफर, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। लास्ट क्वेश्चन सर, बच्चे भी मतलब पूछ रहे हैं कि सर आपने 15 सब्जेक्ट्स बताया, 15 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, इसमें से कोई एक चैप्टर जो आप सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का सभी तीनों पार्ट्स में से कोई एक चैप्टर? सभी तीनों पार्ट्स में से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिल रहे हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगनी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। फिर मैं कह रहा हूँ सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने वैसे पूछा मुझसे, तब मैं बता रहा हूँ एक चैप्टर से कुछ होना नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। एंड केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए बस इसके साथ, और कुछ नहीं। वैसे एक चैप्टर की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थैंक यू सर। सर अभी लास्ट क्वेश्चन बोला, लेकिन एक आयशानी सक्सेना सर, एक लड़की है जिन्होंने क्वेश्चन काफी देर से पूछ रही है कि सर जैसे रिएक्शंस आती हैं कि A+B इज इक्वल टू लाइक गिव्स दैट, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं सर उसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए कोई ट्रिक है सर या कोई टिप है आपकी तरफ से कि इस ऐसे, मतलब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर उन्होंने वैसे मेंशन किया नहीं है, वैसे मेंशन किया नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसे कि इफ
condensed molecular formula is given, then you must know the isomerism. एक्चुअली वहां पर एक चार्ट होता है कि एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, तो उससे एकदम आइडिया लग जाता है कि इसका ये कंपाउंड बन रहा है, इसका ये कंपाउंड बन रहा है, इससे ये रिएक्शन आगे, तो रिएक्शन देखते ही समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो आपको आइसोमेरिज्म में एक चार्ट है, मैंने कराया हुआ है, अपनी वीडियोज में भी कराया हुआ है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरफ है और एक तरफ पॉसिबल कंपाउंड है, तो उस चार्ट की हेल्प से आपको बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। तो चार्ट अगर चाहिए हो तो 3-4 कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? जी सर प्लीज। जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक मैंने सबके लिए नहीं है, मतलब सारे नहीं लिख सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड पॉसिबल कंपाउंड। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है, ए का आपको ये दे दिया C4H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, तो ये CnH2n+2O हो गया। ये जनरलाइज अगर हम करें तो N इज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4, ये 2n+2 मतलब 4 to 8 + 2 10 हो गया O। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, अब इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना जाएगा कि एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, जो मैंने चार्ट में लिख दिया वही बनेंगे, ये अल्कोहल या ईथर ही होगा। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचना नहीं है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन भी एक ऑक्सीजन होता है, तो ये अल्कोहल और ईथर होगा। CnH2nO एल्डिहाइड और कीटोन होगा। CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होंगे। ये बहुत यूजफुल रहेगा सभी के लिए, बहुत यूजफुल रहेगा। जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो इससे सॉल्व हो गए। CnH2n+1 NO ये नाइट्रोसो कंपाउंड या एसिड अमाइड होगा। वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines। एल्कीन और साइक्लोएल्कीन। एल्कीन तुम लोग समझते हो ना, CnH2n एल्कीन ही होता है, लेकिन साइक्लिक एल्कीन भी होता है, साइक्लोएल्कीन। CnH2n-2 ये तुम एल्काइन का समझते हो, लेकिन इससे 4 चीजें बन सकती हैं, एल्काइन और एल्काडाइन, 2 डबल बॉन्ड, साइक्लोएल्कीन और बाईसाइक्लिक कंपाउंड, 2 साइकिल वाला। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये आप एटलीस्ट ये चार्ट याद रखिए, तो ABCD वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। एनी अदर? थैंक यू सर, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। मैंने, हमारे पास जूम सेशन में भी काफी लोग ज्वाइंड हैं, उन सबके क्वेश्चंस मैंने ले लिए। हमारे यूट्यूब चैनल से काफी लोग ज्वाइंड है हमारे पास, मैंने यूट्यूब चैनल से भी जो क्वेश्चंस हैं सर वो भी ले लिए। एंड फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू सर, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने आज ये सेशन लिया और उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर देयर नीट एग्जाम, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू. Thank you, sir. All the students, I would like to inform you that similar kinds of sessions are being planned every Sunday 7 to 8 in the night, so that you are helped and you get all these tips and tricks about studying various subjects, how to prepare for your NEET exam. So today we had with us Dr. Vipin Agarwal, and
he gave you the important chapters, the important tips and tricks that you need to understand and to remember chemistry. So from students' point of view, thank you so much, sir. I request Air Marshal Dr. Pavan Kapoor, sir, to thank Vipin Agarwal for his time and his dedication towards the students. So, sir, please. Thank you to all. Thank you, Dr. Dinesh. Thank you, Mr. Vipin, for your time. और आपने बहुत अच्छी तरीके से बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है बच्चों के लिए. So I am sure all the students must have understood how to prepare for NEET chemistry. So dear children, you have issues, you have problems, please write to us, keep in touch with us, we will try to get back to you. तो आप जो जितना हमें प्रॉब्लम बताएंगे उसके बेसिस पर हम आपके नेक्स्ट सेशंस को प्लान करते हैं. So whatever problems you tell us, we prepare for the next session accordingly. This is not a full-fledged preparation, these are only tips and tricks. जाहिर है कि आपको खुद मेहनत करनी है और खुद पढ़ाई करनी है. आपको देखना है what you want. If you desire a high rank and you desire a rank less than 100 in top medical colleges seat in India and government medical colleges, then you have to read all the chapters, but important chapters will be told to you and some important aspects of those chapters will be discussed with you. Like in chemistry now, he has told you 15 chapters will get you between 30 to 35 questions. And that is, if you get all 35 right, you have scored 35 into 4, that comes to almost about 140 marks, which is very good marks in chemistry. So you decide what you are aiming at. First is you clarify your concept, and those concepts have been clarified to you today. आपको और कोई प्रॉब्लम आती है हमको लिख के भेजिए. Many of you have given us your mobile numbers and your contact email IDs. Our people will get back to you on to the next sessions, and will come. Your problems can be taken from you, and we will address the problem in subsequent sessions. Okay, so Mr. Vipin, once again, thank you very much for a lovely session today. And all students, all the best for your examinations. Thank you for being with us. God bless you all, and continue preparing hard. This is the best time to prepare hard. So prepare hard, give it all your go, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you all very much. Thank you, Dr. Dinesh, for doing a lovely job of collecting the questions from all the channels and putting them across to Mr. Vipin. Thank you, Dinesh. Thank you so much, sir. And to all the students, this video will be kept on our YouTube channel. Please subscribe to our channel for more such videos. And you can repeat it n number of times. You can get all those 15 chapters that Dr. Vipin has told you today. You can view this video at as many times as you want. And your questions and your contact details, please leave in the comment section so that we can establish your contact with Dr. Vipin also. So thank you, Dr. Vipin. Thank you all the students for joining us today. And we hope that it was useful for you. Best of luck for your NEET exam. Stay safe.